हेलो। हेलो, मेरी आ रही? हाँ। हेलो। हेलो। म्यूट कर रहे क्या म्यूट? अनम्यूट करने का, अनम्यूट। हेलो। अनम्यूट करना पड़ेगा इसे। अनम्यूट बोले तो ऐसा कट बता रहा हूँ। हाँ, अब आया देखो ऐसा। शेयरिंग आ रही है इसके लिए। हाँ, हाँ। ये अच्छा है, ठीक है, चलो। हाँ, बेसिक में जाने का है सब। कब जाने का? बेसिक में। बेसिक में, हाँ। बेसिक में गए तो फिर पता था क्या? हाँ, बता दीजिए, बता रहे हैं। एक बच्चे है। नहीं देखिए, पार्ट छोड़ दो इसे। दो दिन कंटिन्यू किया होगा ना अपना। अच्छा होगा। मैग्नीफिकेशन पर्पस। हम्म। लेकिन क्लियर नहीं हो। हाँ, क्लियर नहीं हो। ये है, हाँ, वो नेटवर्क प्रॉब्लम रख रहे थे। हेलो, और आवाज़ नहीं आ रही सर? हेलो। नहीं आ रही। चलो, सारे अभी आया था देखो। हाँ सही निकल तो आ रहा था। ये अच्छा, खराब नहीं। हेलो। वे मुझे ये नहीं समझ। मेरी आ रही है? मेरी आ रही? ईयरफोन की आवाज आ रही थी, चेक करो। टाइम हो गया 12:30 होने को है। आवाज आ रही है बराबर। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं?
उधर डाल देते हैं। हाँ भाई हेलो नहीं नहीं हाँ खर खर कर इधर डायरेक्ट तुम्हारी आवाज आ रही है इधर हाँ हाँ हम एक काम करेंगे सर रिकॉर्डिंग वगैरह कर देंगे चलो ओके टुडे वी विल सी the classification of plant diseases on the basis of causal organisms. Here there are two types of diseases. One is enemy diseases and second is inanimate diseases. Enemy diseases or it is also known as infectious plant diseases. These plant diseases are caused by living agents. The pathogens they may spread by the contact of a diseased plant with healthy plants. All pathogens are parasitic on plants. On the basis of kinds of pathogens, these are further classified as follows. So here, the animal disease, they are caused by microorganisms. They are caused by microorganisms. They are caused by microorganisms. These includes fungi, bacteria, mycoplasma, viruses, nematodes, insects, protozoa, and other living organisms. That also includes the higher plants, angiosperm plant. Sometimes the nematodes are also cause the diseases. So first we will see the diseases caused by fungi. As all of you are familiar with this fungi, most of the fungi they causes the different plant diseases like rust, smut, mildew, root rots, blight, leaf spots, wilt. Beside this, there are large number of diseases which are caused by fungi. The second causal organism that is the bacteria. Here, the bacteria they are also microscopic organisms. They causes the diseases. For example, citrus canker and angular leaf spot of cotton. These are two diseases which are caused by bacteria. The third disease type that is a disease caused by mycoplasma. Here these are the examples. Little leaf of brinjal, grassy shoot of sugarcane. These are the two diseases which are caused by mycoplasma. Okay, these are also microscopic organisms. Next thing that is the viruses. The disease caused by viruses. For example, yellow vein mosaic virus and tobacco mosaic virus. So these are the two familiar diseases which are caused by viruses. This is caused by nematodes. Sometimes the nematodes actually these are the pathogens they causes the root knot diseases in different plants. This is caused by insect. Sometimes the insects also causes the diseases. Next thing, the disease caused by protozoa. Sometimes the protozoan parasites they also causes the diseases. The disease caused by parasitic higher plants also found in most of the plants. Next thing, see here. Sometimes the in animal diseases they are caused by deficiency of minerals, vitamins, and sometimes due to the biological factors they causes the different diseases. For example, low temperature, too low temperature or high temperature, they causes the different plant diseases. In the same manner, lack of excess of soil moisture, they are also dangerous to the growth of the plant. Here, they causes the different plant diseases. Next thing, the lack of excess of light is also very harmful to the plant because they causes the different diseases. Next thing, lack of oxygen also responsible for the development of different diseases. Sometimes the air pollution is also harmful for the growth of the plants. Here they causes the different diseases.
Nutrient deficiency also very important in the development of the disease. Sometimes the mineral toxicities they also causes the disease. Next thing, that is soil acidity or alkalinity. They are also responsible for the development of the different diseases. Next thing, the toxicity of pesticides. Sometimes the excess use of pesticides in the field. The soil contains pesticide particles in that in the next season they show the different harmful symptoms in the growing crop. Next thing, the improper agricultural practices also causes the different diseases. Okay, here. So here the animate and inanimate diseases. In case of animate diseases, here the pathogens are microorganisms. And in case of inanimate diseases, in case of inanimate diseases, they are here. There is no microorganisms. They causes the due to deficiency of biological factors that includes temperature, pH, and some minerals. So these are the basic differences. Hello, hello. So in examination, the question will be asked: classification of plant diseases on the basis of causal organisms or animate and inanimate disease. Okay, sometimes on short notes, the question will be asked: animate diseases and inanimate diseases. If you have any problem, you can ask me questions. This is brief about the diseases classification on the basis of animate and inanimate. Here you have to remember, as per your syllabus, as in your syllabus, there are 17 diseases. Here, in case of these 17 diseases, most of the diseases they are caused by microorganisms. Microorganisms that includes fungi, bacteria, mycoplasma, viruses, nematodes. These are the diseases which are present in your syllabus. One is the rust, second is isthmus, third is mildew, fourth is root rot, fifth is blight, sixth is leaf spot, and seventh is wilt. These diseases they are caused by fungi. Next, the common vectorial diseases that include citrus canker, angular leaf spot of cotton. These are the two diseases which are caused by bacteria. Next thing, that are the diseases which are caused by mycoplasma are little leaf of brinjal, grassy shoot of sugarcane. Okay, these are the two diseases these diseases they are present in your syllabus. Next thing, the diseases caused by viruses. Here, the tobacco mosaic virus is present in your syllabus. Then another example of the diseases which is caused by viruses is yellow vein mosaic viruses. Next thing, sometimes the nematodes they are also cause the diseases. For example, here the root knots. This is also the best example of brinjal plant. In case of brinjal plant, roots knots are seen. In that knots of root, some nematodes are present. So the disease is known as root knot. So here you have to remember that animate diseases they are caused by microorganisms. Microorganisms. Here in the next slide, the inanimate diseases, or it is also known as physiological disorders. These do not spread from plant to plant, so it is known as non-infectious disease. They are caused due to improper condition of the soil, air, mechanical injury. Common examples are tip rot or necrosis of mango fruit, tip one of paddy,
gulab, heart of potato, etc. On the basis of the nature of the cause, they are classified as follows. Here, too low temperature or too high temperature, they causes the disease. The next thing, there is the lack of excess of soil moisture in the field. There is a development of the diseases. Next thing, the lack of excess of light is also responsible for the development of inanimate diseases. Lack of oxygen, air pollution, nutrient deficiency, mineral toxicity, soil acidity, alkalinity, or it is also known as pH, are also responsible for the development of the diseases. Toxicity of the pesticides. As I have told you just, here the pesticides, the use of excess pesticides in the field, they are also responsible for the development of diseases in the next season, because in the next season or in the running season, the soil particle that contains the pesticides or residue of pesticide in the soil. Last thing, that is the improper agricultural practices. Sometimes the improper agricultural practices, they are also responsible for the development of the diseases. So this is all about the classification of plant diseases on the basis of causal organism, inanimate and inanimate. So in examination, the question will be asked for 20 marks, or sometimes for short notes, inanimate and inanimate disease can be asked separately. So this is all about the classification of plant disease on the basis of causal organism, that is inanimate and inanimate disease. If you have any problem, you can ask me question. आवाज आ रही है? हेलो हेलो हाँ भैया, सर, आ रही है अब। आ रही है ना हाँ भैया? सर, आ रही है। हाँ हाँ, तो दूसरे पार्टिसिपेंट नहीं आए? हाँ सर, नहीं आए, पता नहीं क्यों। वो कल क्या हुआ, नेटवर्क नहीं था कल क्या, इसलिए अगर हाँ सर, कल नेटवर्क नहीं आ रहा था। हाँ, तो उसमें देखो, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है पहले, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिसीजेस ऑन द बेसिस ऑफ कॉजल ऑर्गेनिज्म, एनिमेशन। एनिमेट एंड इनएनिमेट डिसीज. ओके, हम्म। एनिमेट डिसीज बोले तो कैसा है, द डिसीजेस विच आर कॉज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, दिस इंक्लूड्स fungi, bacteria, mycoplasma, viruses, nematodes, and sometimes insect, protozoan, and sometimes the angiospermic plant. They causes the diseases. Yeah, for example, in case of यस सर। plants, see here, most of the diseases, they are caused by fungi. पंजाब। Fungi. The examples of the diseases are rust, smut, mildew, rot, blight, leaf spot, and wilt. Okay, these are the diseases which are caused by fungi. So besides this, some diseases, they are caused by fungi. Okay, it is reported that near about 2,500 diseases, they are caused by fungi. अभी तक 2,500 डिसीज ऐसे हैं जो फंजाई, जिससे फंजाई डिसीज कॉज करते हैं प्लांट्स में. अच्छा। इसमें वेस्ट एग्जाम्पल हैं, रस्ट है, सिट्रस सिट्रस ये रस्ट है, स्पॉट है, वेल्ड्यू है, रूट रॉट है, ब्लाइट है, लीफ स्पॉट है, विल्ट है. इसके अलावा आपके सिलेबस में बहुत सारे डिसीजेस हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, बैक्टीरियल डिसीजेस. यस सर। बैक्टीरियल डिसीज कौन से हैं? सिट्रस कैंकर, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन. दीज आर द डिसीजेस विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. बैक्टीरिया। हाँ, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज है ये. सिट्रस कैंकर और एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन. Here, citrus canker is very common. If you see the citrus or lemon, you will find the brown spots on the lemon. Okay, that is the actually the citrus canker disease. ठीक है? It is very common. It is very common in 90% of the lemon. The disease are seen. brown spot दिखते ना lemon पे, और lemon आप खरीद के लाते हो, हाँ, उसके स्पॉट दिखे ना, that is the citrus canker. और नेक्स्ट है देखो माइकोप्लाज्मा. व्हाट इज माइकोप्लाज्मा? माइकोप्लाज्मा क्या है ये? दिस इज आल्सो वेरी स्मॉल microorganisms. They causes the little leaf of brinjal.
grassy shoot of sugarcane. Sugarcane. हाँ, these are the two diseases which are present in your syllabus. अब विरिंजॉल में क्या होता है? विरिंजॉल में अगर समझो माइकोप्लाज्मा इन्फेक्ट किया तो विरिंजॉल के जो लीफ है क्या हो जाते एकदम बारीक बारीक हो जाते छोटे छोटे. ड्यू टू दैट अच्छा. इसका नाम क्या रखे? लिटिल लीफ ऑफ विरिंजॉल. If the leaf of the plants are very small, they does not take in the photosynthesis, so there is no development of the fruits or the little development of the fruits. अब नेक्स्ट क्या है? ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन. इसमें क्या होता है? देखो शुगर केन में क्या होता है? इफ द डिसीज इज कॉज्ड बाय माइक्रोप्लाज्मा. इन केस ऑफ शुगर केन में क्या होता है? शूट जो है ग्रासी हो जाता है. ग्रासी को समझ में आ रहा है? ग्रास के जैसा हो जाता है. अब दूसरे एग्जांपल्स हैं वायरस डिसीजेस. कौन से देखो? टोबैको मोज़ेक वायरस डिसीज. इट इज वेरी कॉमन. दिस इज कॉज्ड बाय वायरस, दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस डिसीज. नेक्स्ट थिंग, येलो विन मोज़ेक वायरस. दिस इज आल्सो सेकंड वायरल डिसीज, Halloween. मोज़ेक वायरस. ठीक है. अब नेक्स्ट देखो रूट नॉट. ये रूट नॉट क्या है? नॉट बोले तो किसको बोलते हैं एक्चुअल में? नॉट किसको बोलेंगे? रूट बोले तो समझ में आ रहा हूँ आपको. हाँ. नॉट बोले तो फोल्डेड रूट. रूट नॉट बोले तो गांठ आती ना, गांठ. अच्छा स्वेलिंग होता है, स्वेलिंग रूट. अच्छा. दैट स्वेलिंग और हाँ, नॉट swelling. नॉट कंटेन्स द निमाटोड्स. दैट कंटेन्स द Contains the. निमाटोड्स. ये दीज आर द निमाटोड्स. अच्छा. स्किन दिख रही है आपको? Nematodes. ये दीज आर द निमाटोड्स जो अंडरलाइन किया हुआ है मैंने. Yes sir. हाँ, दीज आर द निमाटोड्स. अब निमाटोड्स अगर समझो जिनका जूलॉजी उनको मालूम होगा निमाटोड्स क्या रहते हैं. मालूम है कि निमाटोड्स क्या सर? किसको बोलते हैं? निमाटोड्स, सिस्टोड्स. आपको जूलॉजी है क्या आपका? यह है सर. निमाटोड्स पढ़ाई थी क्या आपको? निमाटोड्स याद नहीं हुआ आपको? हाँ, एस्केरिस मालूम है क्या? एस्केरिस, अर्थवर्म. हाँ सर मालूम. वर्म. अर्थवर्म. हाँ, तो टेप वर्म था. टेप वर्म, अर्थवर्म. ऐसे इन द सेम मैनर द निमाटोड्स दीज आर द एनिमल्स. दे accumulate in the वो roots. बारीक बारीक कीड़े के जैसे सर. हाँ, बस बारीक कीड़े जो रहते हैं ना, रूट्स में जमा हो जाते हैं. और रूट्स को क्या करते हैं? हाँ. रूट्स का क्या काम रहता है? अब्सॉर्प्शन, वाटर मिनरल अब्सॉर्प्शन करना. ठीक है. अगर समझो हाँ. पूरे रूट्स में निमाटोड्स जाके जमा हो जाएंगे तो अब्सॉर्प्शन करने देंगे क्या वो? अच्छा. मिनरल्स को आगे बढ़ने नहीं. देंगे क्या? नहीं. सो दैट डिस्टर्ब द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट. सो this is known as root knot disease, which is caused by nematodes. It is caused by nematodes है ना. Actually these are the parasites. हाँ. अब next है insects. Next है protozoan parasites. But sometimes the disease caused by parasitic higher plants. अब जैसे for example अमरवेल सुनेंगे आपने नाम? अमरवेल. क्या सर? अमरवेल सुनेंगे? अमरवेल प्लांट से आती देखो अमरवेल. अच्छा मालूम सर. नहीं मालूम कि हरी जो ऐसे आते हैं ये टेंड्रिल्स के जैसे आते हैं प्लांट्स पे. समटाइम्स आप वास्ट टाइम देखे होंगे एक दरख्त पे दूसरा दरख्त आता है, ऐसा भी देखे होंगे. आएगा देखने में? ऐसा नहीं आया. दैट इज आल्सो वन टाइप ऑफ डिसीज. ओके, दैट इज कॉज्ड बाय हायर प्लांट्स. अब देखो नेक्स्ट इधर देखो. हाँ, अब इधर कैसा है? ये हो गया this pathogen causes the infectious disease in plants. Such diseases are characterized by the ability of pathogen to grow and multiply rapidly on the diseased plants and also by its ability to spread from disease to healthy plants, and they causes the infectious disease. ठीक है. अब infectious disease को बोलेंगे एक प्लांट से दूसरे प्लांट में हो रहा है. ठीक है. या एक एनिमल से दूसरे एनिमल में हो रहा है. दैट इज द infections. हाँ, इसमें कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है? लिविंग थिंग है. इट में भी फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, माइकोप्लाज्मा और अदर प्लांट्स
एंड Other आल्सो plants. हाँ न्यूमाटोड्स भी है, इसको बोलिए इन्फेक्शियस डिसीज और एनिमल डिसीज, हाँ एनिमल डिसीज। अब नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस, अब इधर देखो नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस किसको बोलेंगे? नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस और प्लांट टू प्लांट स्प्रेड नहीं होता। हाँ प्लांट टू प्लांट नहीं होता, उसको बोलेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो सर वो एक ही प्लांट में रहता है, फिर दूसरे प्लांट को मतलब हार्म नहीं करता वो? नहीं इसमें कैसा मालूम क्या? अब इसके देखो हाँ, फल क्या हो रहा है? नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस, और इसका दूसरा नाम क्या है? इन एनिमल डिसीजेस, याद रखो हाँ। Inanimate या फिजिकल डिसऑर्डर। अब ये चीजें कैसे हो disorder. रही? दीज डू नॉट स्प्रेड प्लांट टू प्लांट, ये प्लांट से प्लांट को नहीं ट्रांसफर होते। अब फॉर एग्जाम्पल आप जैसा बोला, अगर आपको कमजोरी हो गई, हाँ नमस्ते। अजान हो गया ना, ठीक है चलो अजान होने दे, हाँ। अरे तेरे म्यूट करना। सबको आवाज आ रही ना? यस सर। 4 पार्टिसिपेंट है आज, हाँ? जोया और अलीना सिद्दीकी। अलीना को आवाज आ रही क्या? हेलो हाँ आ रही सर, आ रही हूँ। सर, आ रही आ रही ना? हाँ। हाँ देखो इसमें क्या, हाँ पार्टिसिपेंट 4 है आज, हाँ? देखो नॉन इन्फेक्शियस Yes. डिसीज किसको बोल रहे हैं? नॉन शॉर्ट नोट्स में कम कभी कभी एग्जाम में आते नॉन इन्फेक्शियस डिसीज और इन्फेक्शियस डिसीज, एनिमल डिसीज इन एनिमल डिसीज है। ओके, ये इसकी डेफिनेशन देखो, दीज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, they are caused due to improper condition of the soil, Improper condition of soil. air or mechanical injury। मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी बोले तो कुछ अगर जख्म हो गया, हाँ हाँ। अब कॉमन एग्जांपल क्या है? देखो एग्जांपल साहब, टिप रॉट और नेक्रोसिस ऑफ नेक्रोसिस। मैंगो फ्रूट, Mango sir. Mango fruit. हाँ टिप बर्न ऑफ पैडी बोलते चावल, Paddy. राइस। ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो, हाँ Extract. etc, हाँ on the basis of the nature of the cause Nature of the cause. they are classified as follows। अब इधर देखो हाँ, Flower. तो कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं? अब कैसा टू लो और टू हाई टेम्परेचर, अगर समझो टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, ये एकदम कम हो रहा है, तो उसकी ग्रोथ होंगी प्लांट की? नहीं होंगी, बराबर है? नहीं होंगे। तो उसको दूसरे सिम्टम्स आ जाएंगे, ऐसे डिसीज क्या होंगे? Yes. नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, बराबर है? Yes sir. अब देखो लैक ऑफ एक्सेस और सॉइल मॉइस्चर, Soil. अगर समझो पानी ज्यादा हो गया जमीन में, ये एकदम कम हो गया, उससे जो प्लांट्स के सिम्टम्स Yes, आएंगे उसे क्या होंगे? नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस, हाँ। और देखो लैक ऑफ एक्सेस ऑफ लाइट, अगर ज्यादा लाइट भी अगर गिर रही, Like हाँ, कम लाइट भी मिल रही, तो उससे क्या होगा? उसकी ग्रोथ बराबर नहीं होगी। अब इन द सेम मैनर लैक ऑफ ऑक्सीजन, growth नहीं होंगे। अगर ऑक्सीजन ज्यादा मिल रहा है तो भी नुकसान होगा। अगर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, तो भी क्या Yes. होगा? प्लांट्स के दूसरे सिम्टम्स बताएंगे, ठीक है? नुकसान होंगे। हाँ न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी, अब समटाइम्स क्या होता है, अगर समझो कोई साइड न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी। न्यूट्रिएंट्स नहीं रहे, उसकी ग्रोथ होगी क्या? नहीं होंगी, बराबर है? उसकी ग्रोथ नहीं होंगी, डेवलपमेंट नहीं होंगी प्लांट्स की, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी। तो क्या करिए फिर अपन, क्या करते फिर? आर्टिफिशियल तो खाद डालते प्लांट्स। अब सुने मेरा, खाद डालते बोल के, इंजेक्शन भी देते। हाँ देखो मिनरल टॉक्सिसिटी, वास्ट टाइम क्या होता है, अगर इंडस्ट्री से बाजू उसकी अगर समझो फाइल पानी जा रहा है खेत में, तो उसे क्या टॉक्सिसिटी हो जाती, उससे भी क्या तो डिसीज हो सकते हैं। सॉइल एसिडिटी और अल्कलिनिटी, अब पीएच जो है, पीएच हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, अगर ये डिस्टर्ब होगा समझो सॉइल का और वाटर का, उससे भी क्या प्लांट को इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? पेस्टिसाइड्स का यूज अगर ज्यादा हो गया, इससे भी डिसीजेज होते हैं। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड्स मतलब सर? पेस्टिसाइड्स बोले तो जो पेस्ट है ना, पेस्ट किसको बोलते हैं? इंसेक्ट्स या पेस्ट? इंसेक्ट्स। हाँ साइड बोले तो किल, हाँ जो समझो पेस्ट को किल करते, तो ये होता है पेस्टिसाइड्स। दवा मारते ना, दवा हाँ सर। पेस्ट को किल करते ना, पेस्ट जो होते हैं इंसेक्ट पेस्ट, खेत में आते हैं तो कीड़े आ गए तो दवा मारते, फवारनी करते, हाँ सर। उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड्स, हाँ।
दवा फवारनी करते ना खेत में फवारनी, हाँ सर करते ना। तो बोलेंगे पेस्टिसाइड्स। हाँ कई के वास्ते करते पेस्टिसाइड्स। और देखो PEST पेस्ट बोले तो इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स। Insects. CIDES क्या है ये? साइट्स। साइट्स बोले तो Sites. किल करने को बोलेंगे या खत्म करने को बोलेंगे। हाँ अब जैसे अपन बोलते हैं ना सुसाइड, सुसाइड सुने Yes, वाला है ना, सुसाइड सुने वाला है ना वर्ड। हाँ सर सुना हुआ है ना। SUICIDES IDS। Insects kill करने के लिए। हाँ सु बोले तो सेल्फ, साइड बोले तो किल। यहाँ क्या है? पेस्टिसाइड, Yes sir। पेस्ट को किल करने का। ठीक है। Yes। हाँ सो दिस इज द ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिसीज। आप यहाँ पे डायग्राम्स Plant उतार disease सकते हैं है, आप। non-disease हाँ है। आप इसमें डायग्राम्स ऐड कर सकते हैं अगर आपको डायग्राम ऐड करने का है। हाँ जब आपको सिर्फ डिसीजेस चलेंगे Okay ना, sir। आपको डिसीजेस अगर होते जाएंगे आपको इसके बाद डिसीजेस हैं, तो अगर इसमें है एक एक डायग्राम उतारते हुए चलेंगे आपको। हाँ रस की ठीक है डिसीज, सर। Okay। हाँ इसकी डिसीज, हाँ इन एनिमेट डिसीजेस, इन एनिमेट, इन एनिमेट है या नॉन, Animate, inanimate। हाँ नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, जो डिसीजेस हम्म। जानदारों से नहीं हो रहे, जो जानदार बोलते हो दैट इंक्लूड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अदर एनिमल्स, दैट इंक्लूड द Animals। निमेटोड्स, पेस्ट, इंसेक्ट और समटाइम्स हायर प्लांट्स। इसके अलावा जो हो रहे होंगे इन एनिमेट बोलेंगे। तो एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में आ सकता है एनिमेट और इन एनिमेट। एनिमेट याद रखो, Inanimate। एनिमेट किसको बोलेंगे? ऐसे डिसीजेस जो जानदारों से हो रहे और जो Yes sir। इन्फेक्शियस डिसीज है, हाँ। बराबर है, इन्फेक्शियस डिसीज Yes sir। उसको बोलेंगे एनिमेट डिसीज। और ऐसे जानदार Animate। नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस ऐसे डिसीजेस जो जानदारों से नहीं हो रहे बल्कि जानदारों के जानवर अलावा से नहीं हो रहे। हाँ दूसरी चीजों से हाँ। हो रहे, जैसा विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, ऐसे डिसीज। आप फॉर एग्जाम्पल आप देख लो बच्चे आपका वाजन Oil। क्या होता है, और डॉक्टर के पास गए कमजोरी हो गई बोलते, बराबर है ना? Yes sir। कमजोरी हो गई, और कैसे कमजोरी हो रही है? एक यस। तो विटामिन नहीं, मिनरल्स नहीं, या ऑक्सीजन बराबर नहीं मिल रहा, हाँ या जो भी चीजें Yes sir। दिस इज द नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। ठीक है। तो अब This is देखो इसमें it। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इस पे ऐसा सर क्लासिफिकेशन इसके ऑफ। नोट्स तो ना हाँ नोट देता आपको, नोट देता PDF में तो हम प्रिंट ले लेते सर फिर। हाँ ठीक है, वो किताब ही देता आपको पूरी। हाँ PDF किताब है, वो किताब ठीक है देता। सर। इससे वाले नोट दिया था ना मैंने आपको, Okay sir। हाँ सर। इससे वाले दिए हुए नोट्स आपको। हमको नहीं ना, नहीं दिए बायो के, ये बॉटनी के। मैंने तो एक चैप्टर के दिया था ना, चैप्टर के अपने ग्रुप में डाले हुए नहीं। ठीक है देखते हैं हाँ सर। देखो नहीं तो फिर डबल चेक से डाल करना देता। पड़ेगा। हाँ डबल से मैं क्या करता हूँ, बुक डाल देता हूँ। Yes। हाँ उसमें से आप वो ठीक हिसाब से है वो ये कर लो। तो अब इसमें देखो आप इसको क्या करने का, ये इसे लिखा हुआ जो है, हाँ इसको एक्सप्लेन करके लिखना है आपको। ये जो आप ये स्लाइड्स बता रहे हैं ना आपको, इसको एक्सप्लेन हाँ। करना है। Yes sir। एक्सप्लेन करना, इन्फेक्शियस डिजीज किसको बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस, एनिमल डिसीज किसको बोलते हैं, इन एनिमल डिसीज किसको बोलते हैं, याद रखो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकता है। एनिमल डिसीजेस आर कॉज्ड बाय, क्या बोलेंगे आप? माइकोप्लाज्म, वायरस, निमेटोड्स। हाँ जो हाँ ऑप्शन जो भी दिया उसका ऑप्शन बराबर लिख लेना। तो देयर दिस डिसीजेस कॉज्ड बाय लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। Living things। हाँ जो भी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या इंसेक्ट्स है या पेस्ट है, हाँ या इसके अलावा हायर प्लांट्स है। इन एनिमल डिसीजेस आर Yes। कॉज्ड बाय, ये कैसे होते हैं? वो नॉन लिविंग थिंग्स वजह से होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, वेरी गुड। नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है। तो इसके डेफिनेशन भी बताया आपने, इसका डेफिनेशन एनिमल। ठीक है, ये भी बता दिया आपको। Yes sir। यस सर। हाँ अब इसमें आपको कुछ पूछने का तो पूछ सकते हो। हाँ अभी तो 4-5 मिनट बाकी है। देखो इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं इसमें, या इसके अलावा दूसरा। इसमें आ गया सर। हाँ